वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आइंस्टाइन पोस्टुलेट रिगार्डिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी बुर्गेली जो प्रिंसिपल है, ठीक है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो ये टॉपिक 14.4 दैट इज़ फोटोसेल, ये आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इस साल। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है सिलेबस का वो डी ब्रूगली हाइपोथेसिस, ठीक है, तो उसका हम स्टडी करेंगे। सो इन 1924 दिस प्रिंस लुइस डी ब्रूगली दैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ डी ब्रॉय proposed on the basis of symmetry exists in nature that if the radiation has dual nature, sometime wave nature dominates and sometime particle nature, so matter also possesses the dual nature, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट है डी ब्रूगली, ओके, उन्होंने 1924 में ये प्रपोज किया था, ठीक है, बाय द सिमेट्री इन द नेचर, ठीक है, इफ़ द रेडिएशन हैज़ अ ड्यूअल नेचर, ठीक है, तो जो भी रेडिएशंस है लाइट का, सो इट हैज़ द ड्यूअल नेचर, मीन्स उसके दो नेचर है। फर्स्ट है वेव नेचर, ओके, एंड द सेकंड इज द पार्टिकल नेचर, एंड बोथ दीज नेचर्स आर डोमिनेट्स ईच अदर। सो दैट्स वाई उन्होंने बोला कि जो भी मैटर है, सो मैटर हैज़ अ ड्यूअल नेचर, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। Normally we talk about the matter as a composite of particles, but are there situation where matter seems to show wave like properties, ठीक है। तो नॉर्मली जो मैटर्स है उसमें पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट इन केस ऑफ अदर सिचुएशन matter also contains the wave like properties. So this will become evident from the experiments of diffraction of electrons from nickel crystal that can be described later, ठीक है। So de Broglie used the properties like frequency, which is shown by V, and the wavelength of light, that is lambda of wave, and propose a relation that connect this particle, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट है डी ब्रूगली, इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, लाइक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो लाइट हैज़ अ incident at a particular frequency and a wavelength which is denoted by lambda of a wave, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करके एक रिलेशन यहाँ पे डेवलप किया है, ठीक है, फॉर पार्टिकल। तो उसको हम स्टडी करेंगे अभी। So in that E is the energy and P is the momentum. So the momentum P carries by the photons of energy E. It is given by the relation P is equal to E by C, ठीक है। So we know that the light contains the energy of photons, okay, and that energy is denoted by E. So here P is equal to E by C, where this P is the momentum, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लाइट में फोटॉन्स का एनर्जी होता है, ठीक है। तो उस एनर्जी को ई से डिनोट किए यहाँ पे, ठीक है, एंड द मोमेंटम इज पी। सो पी इज इक्वल टू ई बाई सी, वेयर इज वैलिड फॉर द मासलेस पार्टिकल ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट सी, ठीक है। तो ये जो है मासलेस पार्टिकल के लिए अज्यूम किया है, जो कि ट्रैवल हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी यूजिंग द आइंस्टाइन रिलेशन ई, ठीक है। तो इसका हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में स्टडी किया, ई इज इक्वल टू एच वी। सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस ई एज अ एच वी। सो पी इज इक्वल टू ई बाई सी। सो इंस्टेड ऑफ ई वी कैन पुट द एच वी, where h is the Planck constant and v is the frequency. So we know that lambda v is equal to c. So we put the value. So ultimately it will be h by lambda, okay. So here lambda is the wavelength and h is the Planck constant. So de Broglie proposed that a moving material particle has a total energy of E and the momentum P has associated with it a wave analogous to photon, ठीक है। तो इस रिलेशन से जो भी मूविंग पार्टिकल है
that contains the total energy as a E and the momentum as a P. Okay, so then he suggested that the wave and the particle properties of matter can also be described by the relation similar to P is equal to h by lambda. Okay, so thus frequency and the wavelength of wave associated with a material particle of mass m moving with the velocity v is given as v is equal to e by h and lambda is equal to h by p, or it is equal to h by mv. Okay, this v is nothing but the velocity or the frequency, and this E is the energy and H is the Planck constant. So he referred to this wave associated with the material particle as a matter wave. ठीक है, सो ये जो वेव्स है इनको रिलेट किया गया है मटेरियल पार्टिकल्स के साथ एंड दे आर कॉल्ड एज द मैटर वेव्स. सो द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन v is equal to E by h and is known as the de Broglie wavelength. Lambda is equal to h by p. So greater is the momentum, shorter is the wavelength. ठीक है, where p is the momentum. ठीक है, तो मोमेंटम अगर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ जो होगा वो रिड्यूस होगा. ठीक है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इफ द momentum is decreased, then wavelength will be increased like that. So it is called as a this de Broglie principle. Okay, for the wavelength of matter is known as the de Broglie relation. Okay, so for particle of mass m moving with the velocity v, so the kinetic energy is. ठीक है, तो यहाँ पे जो मूविंग मास है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फॉर्म किया. सो E is the energy, K is used for the kinetic. So the kinetic energy Ek is equal to 1 by 2 mv square is there. ठीक है, और V is equal to under root of 2 Ek divided by m, where m is the mass of the moving particle. Okay, तो यहाँ पे मूविंग पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है. ठीक है, thus lambda is equal to h by mv. ठीक है, so this relation is used. So h by m is the constant. Okay, and we are putting the value of this v as a m under root of m divided by 2 ek. Okay, so the final equation is h divided by under root of 2m ek. So that is the value of lambda. So for charged particle of charge q accelerated from rest through the potential difference v, the work done is qv. ठीक है, तो charged particle is considered as the q and it is accelerated from the some initial position, that is from rest position to the movement. So it is has a potential difference of v volt. So the work done, ठीक है, तो उसका जो वर्क डन होगा वो charge into the potential difference, that is qv. ठीक है, so this provides the kinetic energy. So therefore ek is equal to qv. So we put the values. So lambda is equal to h divided by under root of 2m ek is there. Okay, and we put the value of this kinetic energy as a work done, which is qv. So put 2m instead of this ek, which is the kinetic energy, we put as a this work done, that is qv. So that is a relation holds for any charged particle like electron proton. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है लैम्बडा का, ठीक है, इक्वेशन है ये चार्ज पार्टिकल के लिए, दैट लाइक्स द इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स or the charge ions, where m is the corresponding to the mass of charged particle. Of course, when v is large, suppose in kilovolt, so that the speed of particle become close to the speed of light. ठीक है, तो जब भी वोल्टेज v, ठीक है, वो लार्ज रहेगा विच इज़ इन किलोवोल्ट, तब जो स्पीड रहेगा पार्टिकल का दैट इज़ नियर अबाउट टू द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट है. ओके,
सो सच इक्वेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है, कि जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ओके, सो यू लर्न अबाउट द अदर इफेक्ट इन सच सिचुएशन और इन हायर क्लासेस, ठीक है। देन विल टेक वन ऑफ द प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन दिस डी बुर्गली प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है हमें, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट, फाइंड इट्स डी बुर्गली वेवलेंथ, ठीक है। तो हमें डी बुर्गली जो वेवलेंथ है दैट इज़ लैम्बडा, ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है। और इलेक्ट्रॉन का एक्सिलरेशन वोल्टेज हमें यहाँ पे दिया है, दैट इज़ वी इज़ गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में गिवन डेटा लिखेंगे। वोल्टेज हमें दिया है 120 वोल्ट, एंड वी नो दैट लैम्बडा इज इक्वल टू 1.228 divided by under root of v. So we can put the value of this v, okay, which is 120 volt. So it is lambda is equal to 1.228 divided by under root of 120. When we calculate it, so we'll get the value of 0.112, ठीक है, nanometer. So that is the unit for the wavelength. Nano means 10⁻⁹, like that, ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी वेवलेंथ है डी बुर्गली वो फाइंड कर सकते हैं अगर हमें वहाँ पे एक्सेलरेशन पोटेंशियल वहाँ पे दिया हुआ है, लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट 14.6 दैट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये आपको सिलेबस में नहीं है इस साल। देन वी स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस which is wave particle duality of matter. Okay, so the material particles show the wave like nature under certain circumstances. So this phenomenon is known as the wave particle duality of matter, ठीक है। तो जो भी मटेरियल है या मटेरियल पार्टिकल्स है वो शो करता है वेव लाइक नेचर। जैसे अभी हमने देखा कि पार्टिकल हैज़ अ टू नेचर्स, ओके, सो वन नेचर इज वेव लाइक नेचर, ओके। So this phenomenon is called as the wave particle duality of matter. So in that frequency is denoted by omega and the wave number is k are used to describe the waves in classical theories, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा से डिनोट होगा एंड द वेव नंबर k से डिनोट होगा, ओके। while mass m and momentum p are also described there, ठीक है। So the wave particle duality implies that all the moving particles have associated frequency and associated wave number, and all the waves have associated energy and associated momentum, ठीक है। तो इस वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में जो थ्योरम है, ठीक है, सो दैट कंसिस्ट ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स हैव एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी। तो जितनी मूविंग पार्टिकल्स है, ठीक है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ वेव नंबर। तो ये दोनों भी चीज़ें उसमें होता है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओके, एंड वेव नंबर जो कि है स्मॉल के से डिनोट होता है, ठीक है। ऑल्सो ऑल द वेव्स एसोसिएटेड एनर्जी एंड एसोसिएटेड मोमेंटम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर के साथ इसमें जो एनर्जी भी होगा एंड ऑल्सो द मोमेंटम पी इज़ ऑल्सो देयर, ठीक है। सो वेयर पी इज़ द मोमेंटम. So we come across the wave particle duality of matter due to the quantum behavior. So when we are dealing with microscope object, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट के साथ हम जब डील करते हैं जिसका साइज़, ठीक है, लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर है, सो इट इज़ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। सो स्मॉल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एच सेट्स द स्केल ऑफ द क्वांटम फिनोमिना दैट इज manifest themselves, so that इन ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। तो जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में हैव एसोसिएटेड वेवलेंथ विच इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा, एंड देन व्हाई देन वी डू नॉट टॉक अबाउट द वेवलेंथ ऑफ child running with the speed of v on the pathway of 2 meter away from the car moving with the speed of v on the road 20 meter wide, okay. उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। सो अ स्टूडेंट वेइंग 45 kg इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर ऑन अ फुटपाथ 2 मीटर अवे
a small car weighing at 1200 kg is moving with the speed of 60 km per hour on a 20 मीटर वाइड रोड, कैलकुलेट देयर डी बुर्गिली वेवलेंथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डी बुर्गिली जो वेवलेंथ है लैम्बडा, उसे हमें कैलकुलेट किया करना है। ठीक है, तो जिसमें एक स्टूडेंट है जिसका वेट 45 kg है। ठीक है, तो वो रन कर रहा है, जो स्पीड है रनिंग का वो 8 किलोमीटर पर आवर है ऑन अ फुटपाथ ऑफ 2 मीटर वाइड। ठीक है, तो फुटपाथ का जो लेंथ है वो दिया हुआ है यहाँ पे, विड्थ दैट इज़ 2 मीटर वाइड, एंड उसके साथ एक स्मॉल कार है जिसका वेट है 1200 kg। ठीक है, उसका जो स्पीड दिया है दैट इज़ अ रनिंग कार दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड रोड का जो साइज़ है जहाँ पे कार रन हो रहा है, सो दैट विल बी अ 20 मीटर वाइड रोड। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है डी बुर्गिली वेवलेंथ दैट इज़ लैम्बडा। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जो गिवन डेटा है, ठीक है, उसको यहाँ पे नोट करेंगे। तो v1 इज़ द स्पीड ऑफ दैट चाइल्ड और स्टूडेंट, ओके, जो कि 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। सो 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3600, so we have to convert into the meter per second, and the mass of that student is given which is 45 kg। ठीक है, then v2 is the velocity of this, और सॉरी स्पीड ऑफ कार। ठीक है, तो कार का स्पीड दिया है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द मीटर पर सेकंड। सो इट इज़ 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, एंड कार का यहाँ पे वेट दिया है। ठीक है, सो दैट इज़ द मास ऑफ कार विच इज़ 1200 kg। ओके, तो इसी तरह से स्टूडेंट का वेट एंड वेलोसिटी यहाँ पे दिया है, एंड कार का वेट एंड वेलोसिटी यहाँ पे दिया है। ठीक है, देन वी कैलकुलेट द मोमेंटम। सो p1 इज इक्वल टू, ठीक है, द वेट मल्टीप्लाई बाय द दिस स्पीड। ठीक है, सो वी गेट द मोमेंटम p1 एंड p2। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे, एंड देन उसके बाद कार के लिए अलग से हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कार का वेट एंड जो स्पीड है, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट के लिए मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट का वेट यहाँ पे दिया है 45 kg, दैट इज़ m1 इंटू v1। सो p1 इज इक्वल टू m1 विच इज़ द वेट ऑफ स्टूडेंट इंटू द वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी द स्पीड ऑफ दैट स्टूडेंट विच इज़ गिवन एज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे वेट दिया है 45 स्टूडेंट का, एंड द स्पीड इज़ 8 इंटू 10⁻³ इंटू 3600, जिसे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। व्हेन वी कैलकुलेट इट, सो वील गेट द 100 kg मीटर पर सेकंड फॉर स्टूडेंट, सो दैट इज़ द मोमेंटम p1 फॉर स्टूडेंट। इन सेम वे वी कैलकुलेट द मोमेंटम p2 फॉर द कार। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आएगा, p2 इज इक्वल टू m2 इंटू v2, वेयर दिस m2 इज द मास ऑफ कार and this v2 is the speed of the car। okay, so we put the values 1200, that is the weight of car, into 60 into 10⁻³ divided by 3600, then we calculate it, so it will be a 20,000 kg meter per second for the car, so that is p2 is the momentum for the car। then we calculate the de Broglie wavelength। So the formula is λ1 is equal to h by p1, where this h is the Planck constant and the p1 is the momentum for the student। ठीक है, we put the values, the Planck constant value is 6.63 into 10⁻⁻34 joule, and divided by the momentum is 100 kg meter per second। when we calculate it, so we'll get the value λ1 is equal to 6.63 into 10⁻⁻36 meter। okay, so that is the wavelength for the student। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो वेवलेंथ है वो कार के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज डिनोटेड बाय λ2 h by p2, वेयर p2 इज द मोमेंटम जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कार के लिए।
So we put the values for h. It is a constant, so its value is 6.63 into 10 raised to minus 34 js divided by the momentum p2 is 20,000 kg meter per second. When we solve it, we get the 3.32 into 10 raised to minus 38 meter for car. ठीक है, तो दैट इज द लैम्बडा टू इज द वेवलेंथ फॉर द कार. ठीक है, तो इसी तरह से हमने डी बुर्गली जो वेवलेंथ है वो स्टूडेंट के लिए अलग से कैलकुलेट किया है, कार के लिए हमने अलग से कैलकुलेट किया है, बिकॉज जो वेट है एंड स्पीड है. ठीक है, तो स्टूडेंट का जो है वो अलग से दिया है, कार का स्पीड एंड वेट अलग है. ठीक है, तो इसी तरह से हमने लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 जो डी बुर्गली वेवलेंथ है वह कैलकुलेट किए स्टूडेंट एंड कार के लिए. ठीक है, तो इसी तरह से प्रॉब्लम्स पेपर में आ सकते हैं. ओनली द वैल्यू विल बी चेंज. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो चेंज रहेगा, मास चेंज रहेगा. ठीक है, कार का वेट एंड मास चेंज रहेगा. ठीक है, तो फॉर्मूले रिमेन्स द सेम, जो प्रोसीजर है वो यही रहेगा. ठीक है, ओनली द वैल्यू विल बी चेंज. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज calculate the de Broglie wavelength of electron moving with the kinetic energy of 100 electron hole passing through a circular hole of diameter 2 angstrom. ठीक है, तो इसमें हमें डी बुर्गली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है जो कि मूविंग इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, तो जिसका काइनेटिक एनर्जी के दिया हुआ है. ठीक है, एंड जो पास हो रहा है सर्कुलर होल थ्रू उसका डायमीटर हमें यहाँ पे दिया हुआ है. वी स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉल्यूशन. इन दैट वी राइट द गिवन डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी दिया है. सो ई के इज़ द काइनेटिक एनर्जी, ई इज़ द एनर्जी एंड के इज़ फॉर काइनेटिक एनर्जी. सो ई के इज इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 90 जूल. तो इसको हमें जूल में कन्वर्ट किया है, इसी वजह से हमें इसको मल्टीप्लाई किया है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 से. ठीक है, then speed of electron is given by the relation 1/2 mv square. 1/2 mv square is the kinetic energy. Okay, so it is 100 into 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. ठीक है, वो ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिया है. देन वी कैलकुलेट द वेलोसिटी. ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे मोमेंटम कैलकुलेट करना है एंड वी नो दैट p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने स्टूडेंट एंड कार के लिए मोमेंटम अलग से कैलकुलेट किया था P1 एंड P2. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है फर्स्ट मोमेंटम. तो उसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम इंटू वी. ठीक है, तो अभी हमें V निकालना है. ठीक है, यहाँ पे सो दैट्स वाई वी मैनिपुलेट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ V. ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ इट विल बी दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 divided by 9.11 into 10 raised to minus 31. ठीक है, when we calculate it, so we get 0.593 into 10 raised to 7 meter per second. Okay, because velocity is measured in meter per second. Okay, then we calculate the momentum as a p. ठीक है, क्योंकि हमारे पास मास है अभी. ठीक है, एंड जो है v है. ठीक है, दैट इज स्पीड. तो हम इजीली यहाँ पे मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का. सो पुट द वैल्यू, द एम इज़ 9.11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 kg मल्टीप्लाई बाय द स्पीड इज़ 0.593 इंटू 10 रेज़ टू 7 मीटर पर सेकंड. व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, सो वी गेट द 5.40 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे मोमेंटम मिला है इलेक्ट्रॉन का, मूविंग इलेक्ट्रॉन का. देन वी कैलकुलेट द डी बुर्गली वेवलेंथ. ठीक है, तो जिसका फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p, वेयर दिस लैम्बडा इज द वेवलेंथ, h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम. ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, दैट इज 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 जूल. ओके, डिवाइडेड बाय मोमेंटम जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 5.40 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 24 kg पर मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 1.23 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर. ओके, सो दैट इज़ द डी बुर्गली वेवलेंथ लैम्बडा फॉर दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन.
तो इसी तरह के प्रॉब्लम पेपर में आ सकते हैं। ओनली द वैल्यू विल बी चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू चेंज होगा एंड द डायमीटर विल बी चेंज, सो दैट द न्यू प्रॉब्लम विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है, दैट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है, वो यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर का स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।